ایسے کوئی لوگ نہ آئے جو حکومت کا اعلی کار بن جانے والے ہوں، ایسے کوئی لوگ نہ آئے جن کو ملت کا کوئی دکھ نہ ہو۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں موجود جو ہماری اپنی پراپرٹیز کو، مسلمانوں کی ملت کو بیچ کھانے کی جو ہے کوششوں میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں وقف کرنے کا ایک مزاج تھا، آج تو وقف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا مزاج ہو گیا ہے۔ ٹرسٹیوں میں ایسے لوگ ہوں جو شریعت کے جانکار ہوں، غفلت میں رہ جائیں، اور ایسے لوگ اس میں آ جائیں جو حکومت کے اس پر پلنے والے ہیں کہ مسلم ادارے ہی نہیں، جتنے اور ڈیموکریٹک ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی کمزور کر دینے کی سازش ہے۔ نیوز فار بھارت ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بھاجپا سرکار اب مسلم اداروں میں، مسلم تنظیموں میں بھی گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ احمد آباد کے کئی مشہور پرانے مسلم اداروں میں بی جے پی اپنے لوگوں کو بیٹھانے کے لیے لگاتار کوشش کر رہی ہے۔ کچھ مسلم اداروں میں بی جے پی سے جڑے لوگوں کی انٹری بھی ہو گئی ہے، اسی میں سے ایک ہے احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی، جس کے ٹرسٹیوں کی نیوکتی کی پرکریا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سماجک کاموں کے لیے شروع کی جانے والی سنستھا کیا اب یہ ایک راجنیتک اکھاڑا بن جائے گا، اور کیا مسلم سنستھاؤں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ انہی تمام مدعوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہم جماعت اسلامی ہند کے گجرات یونٹ کے جو امیر حلقہ ہے سلیم پٹیوالا صاحب، انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ سلیم صاحب، جیسے میں شروعات کیا کہ کیا اب مسلم اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ جو فاسی وادی حکومت ہے یہ بہت شروع سے یہ چاہ رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں بھی دخل اندازی کی جائے اور مسلمانوں کو کارنرڈ کیا جائے، مسلم نوجوانوں کے اندر ایک اشتعال یا ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کی جائے، اور تمام مسلم ادارے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم ادارے ہی نہیں، جتنے اور ڈیموکریٹک ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی کمزور کر دینے کی سازش ہے، جیسا کہ چناؤ کمیشن ہو یا عدلیہ ہو، یہ تمام ان کو بھی کمزور کرنے کی سازش ہے۔ اس میں خاص طور پر مسلم اداروں کو تو کمزور کرنے کی پرزور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس سے مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے جو ادارے جو ہماری مسلم ملت کے اپلفمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی ان دنوں راجنیتک اکھاڑا بن گیا ہے، جبکہ اس کی شروعات جو ہے 100 سال پہلے ہوئی تھی اور سماجک کاموں کے لیے ہوئی تھی۔ مسلموں کا اتھان کیسے ہو، یتیم بچے کس طریقے سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کیا اب جس طریقے سے صبغاہٹ ہو رہی ہے کیا وہ سماجک کام اب بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی یہ بہت معتبر ادارہ رہا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے 1914 سے یہ وجود میں آیا، اور بہت ساری ملکتیں یہ کنٹرول کر رہے ہیں، جس میں مسجدیں بھی ہیں، درگاہیں ہیں، اور دوسری اس طرح کی یتیم خانے وغیرہ ہیں۔ تقریباً ایسا میرے علم میں ہے کہ 1500 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں جو یہ رن کرتے ہیں، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اب تک یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور اتنے سالوں میں انہوں نے ملت کے لیے کافی اچھا کام کیا ہے۔ ابھی یہ معلوم ہوا کہ ان میں اب نئے کچھ لوگ ٹرسٹی لیے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پھر غفلت میں رہ جائیں اور ایسے لوگ اس میں آ جائیں جو حکومت کے اس پر پلنے والے ہیں۔ تو ہمارے ایسے لوگوں کو، ملت کے جو ذمہ دار ہیں، جو ملت کا بھلا چاہتے ہیں، جو کسی کے آگے جھکنے یا بکنے والے نہ ہوں، اور جو صرف ملت کے لیے اور اللہ کے لیے یہ ساری خدمات انجام دینے کے لیے وہی لوگ آگے آئیں اور انہی لوگوں کو آگے ہم لائیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پورے وقف کو حکومت جو ہے وہ سبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وقف کے بارے میں جس طرح کا جو بل آیا ہے اور جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو وقف کی پراپرٹی سے بے دخل کیا جائے۔ اس میں پھر اس طرح کے جو ادارے جو بڑی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر یہ ادارے بھی جو ہے وہ حکومت کے اس میں چلے جاتے ہیں اور اس میں دخل اندازی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ سلیم صاحب، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب اس کے آئین کو پڑھا جائے کہ 9 ٹرسٹی ہوں گے، اسی میں سے ایک ادھیکش ہوگا، اور کچھ ٹرسٹیوں کا نیوکتی جو ہے وہ ہوتا رہے گا، پرانے لوگوں کو
रिटायर हो जाएंगे, नए लोग आएंगे। लेकिन अब चूंकि गुजरात वक्फ बोर्ड में इसके खिलाफ में एक शिकायत हुई थी, उसके बाद में पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। नए ट्रस्टी आएंगे तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, 1500 प्रॉपर्टीज़ है, किसमें क्या मसले हैं, किस तरीके से मसले नहीं हैं। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या गुजरात वक्फ बोर्ड जानबूझ के इनकी जो आइन था, इनका जो संविधान था, उसको भी बदलने की कोशिश कर रही है? जी, जहाँ तक मुझे मालूमात है, बहुत अच्छा सिस्टम था इनका कि एक साथ सारे ट्रस्टी नहीं जाते थे। कुछ ट्रस्टी पुराने रहते थे, नए ट्रस्टी आते थे, ताकि पुराने ट्रस्टीज नए ट्रस्टीज़ को सारी जानकारी दे सके, उनको बता सके कि हमारा क्या ट्रेडिशन है। फिर वो उनमें से जो पुराने 3 लोग जाएं, नए लोग आए, तो जो अब तक आए थे वो लोग पुराने हो चुके हो, वो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था और ये सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए। अगर हुकूमत या वक्फ बोर्ड या कोई भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि एक साथ सारे ट्रस्टी नए लाए जाएं, तो ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर जैसे कि आपने भी ये बात कही कि उनको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो है, और फिर वो बहुत सारी मनमानियाँ चालू हो जाएंगी। तो इस बारे में उम्मत को सोचना चाहिए, उम्मत के ज़िम्मेदारों को, तंजीमों को मिलकर ये बात कहनी चाहिए कि वो जो ट्रस्ट का अपना तरीक़ा है और कानून है, उसको बरकरार रहे और पुराने लोगों को रखते हुए फिर कुछ नए लोगों को लिया जाए, और ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह के वो हो, ताकि मेंटेन रहे मामला। अच्छा, चूंकि एक ये दीनी मसला भी है, क्योंकि वक्फ जो है वो अल्लाह के राह में दी हुई प्रॉपर्टी है, और उसको उसका मेंटेन जो है वो शरीयत के नुक्ते नज़र से भी किया जाता है। जो नए ट्रस्टीज़ आएंगे, क्या एक अपील करेंगे कि भाई वो दीन और दुनिया दोनों चीज़ों को लेकर एक साथ चलें, ताकि उम्मत का भी हक अदा हो और उनका भी हक अदा हो? जी, इस सिलसिले में यह है कि होना ये चाहिए कि ट्रस्टियों में ऐसे लोग हों जो शरीयत के जानकार हों, जो यानी इस्लाम के दीन इस्लाम को और शरीयत के मौक़िफ़ को और उसको अच्छी तरह से समझते हो। ऐसे कुछ लोग लाज़मन होने चाहिए, कुछ लोग मैनेजमेंट वाले भी होने चाहिए, ताकि वो जो काम ये हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वक्फ भी इस पर गौर करे, उम्मत मुस्लिमा भी उस पर गौर करे, ये सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इस पर गौर करें, और इस तरह के लोगों की एक टीम बनाई जाए। अच्छा, चूंकि आप भी एक मुस्लिम इदारे के साथ में जुड़े हुए हैं, मौजूदा वक्त में किस तरीके से मुस्लिम संस्थाओं को, मुस्लिम इदारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मसले पेश आ रहे हैं उसको लेकर? जी, तो ये बात तो है कि अभी जिस तरह का हालात है, उस तरह के हालात में मुस्लिम तंजीमों के लिए बड़े सख्त हालात दरपेश है, और इसलिए उनको मिलकर और सर जोड़कर कोशिश करना चाहिए और कुछ राय अमल निकालना चाहिए। इस सिलसिले में हमने कोशिश की थी कि एक गुजरात लेवल की एक ऐसी नुमाइंदा तंजीम बनाई जाए, जिसमें तमाम तंजीमों के लोग, तमाम मसलक के लोग, तमाम जमातों के लोग शामिल हो, और जब भी कोई इस तरह का मसला हो तो पूरी उम्मत के नुमाइंदे के तौर पर वो जमात काम करे। तो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति एक वो है, जिसमें तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी है। ये हमारी ख्वाहिश है कि ये तंजीम को थोड़ा सा वो मिले, ये नुमाइंदा तंजीम है जिसमें तमाम मसलक के लोग, इवन शिया हजरात हैं, हमारे बरेलवी मसलक के हैं, अहले हदीस है, तबलीगी हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये इस तरह की कोई नुमाइंदा तंजीम को हम थोड़ा सा प्रमोट करें और उसको आगे लेकर आएँ, ताकि इसके ज़रिए से मिल्लत के जितने मसाइल हैं इनके लिए हम कुछ कर सकें। अच्छा सलीम साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि एक बिन राजकीय संस्था, मतलब जिसमें पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान नहीं था, उसकी शुरुआत करने वाले लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद करके प्रॉपर्टियों को एक किया होगा, क्योंकि उस दौर में वक्फ करने का एक मिजाज था। आज तो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने का मिजाज हो गया है। तो एक लंबा अरसा रहा, बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी कुर्बानियाँ दी होगी, तब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास भी इतनी प्रॉपर्टी आई और उसका पूरा उम्मत फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी संस्थाएं जो हैं वो राजनीतिक लोगों के हाथ में आनी चाहिए? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दरअसल मुसलमानों को इस वक्त दो तरफा हमलों का सामना है। एक तो बाहरी हमले हैं, एक अंदरूनी हमले हैं। बाहरी हमले यानी हुकूमत की तरफ से जो कुछ बंदिशें या जो कुछ परेशानियां वो तो है, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मौजूद जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, मुसलमानों की मिल्लत को बेच खाने की जो है कोशिशों में लगी हुई है। इस तरह की ये इनको वक्फ कानून लाने का जो एक मौका मिला है ना,
ये भी इस वजह से कि जब मुसलमान मुतवल्लिन ने और इन्होंने जो है जिस तरह से ज़मीनों पर कब्जा करके अपनी ज़ाती मिलकतें बनानी शुरू की, उसकी वजह से हुकूमत को ये वो मिल गया। तो हमें इन दोनों से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। बाहर के लोगों से भी चौकन्ना है कि बाहर वाले हम पर हमला न करें, और अंदरूनी भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर के लोग हमारी अपनी उसका फ़ायदा न उठाने पाए। और ये मिल्लत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि ऐसे कोई लोग ना आए जो हुकूमत का आलाकार बन जाने वाले हों, ऐसे कोई लोग ना आए जिनको मिल्लत का कोई दुख न हो, मिल्लत का कोई वो न हो, एहसास न हो, और जो सिर्फ अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाने में या अपना ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हो, ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए और ऐसे लोगों को ना आने दिया जाए। अच्छा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की 1500 प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में क्या हो रहा है, नए ट्रस्टियों की नियुक्ति हो रही है, किस तरीके से हो रही है, पुराने को क्यों भंग कर दिया गया, पूरा उम्मत इससे बेखबर है, नींद में है। जब चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, चीज़ें गलत तरीके से होने लगेंगी, तब लोग हाय तौबा करेंगे। क्या एक अपील करेंगे ताकि मुस्लिम इन मुद्दों को लेकर बेदार हो? जी, यही हमारी सबसे बड़ी ख़राबी है कि मिल्लत जब तब जागती है जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। तो इसलिए हम तो पहले ही से ये कर रहे हैं कि हमारे उलमा हजरात भी और हमारे ज़िम्मेदारान भी मसाजिद में जुमे के खुतबे वगैरह में इन तमाम ज़मीनी मसाइल को और जो पेश आ रहे हैं और जो आगे और ख़तरा बन सकते हैं उनके बारे में बार बार उम्मत को बेदार करते रहें, बताते रहें और उनको इस मामले में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। हम लोग हर सतह पर, हर प्लेटफार्म से ये बात कह रहे हैं कि देखिए मिल्लत के सामने बड़े ख़तरात हैं, हमें मिलजुल कर इन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए ये करना पड़ेगा। ये हमें नीचे के लेवल तक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक, यानी ऐसे लोग तक जो मस्जिद तक भी नहीं आ पाते हैं, उनको भी इसके लिए हमें बेदार करना पड़ेगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जाकर मोहल्लों में उसमें ये करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये काम कर सकेंगे। क्या जमात इस्लामी हिंद या आपने जो कहा कि एक मुश्तरका तंजीम बनाई है आप लोगों ने, मुस्लिम हित रक्षक समिति, इस मामले को लेकर कुछ मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश करेगी, कुछ पहल करेगी ताकि लोग समझ सकें, जान सकें कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी क्या है, इसका इतिहास क्या है, कितनी प्रॉपर्टियों की ये देख रेख कर रही है और ये किस तरीके से मुस्लिमों को फ़ायदा पहुँचाने की काम कर रही है। इस सिलसिले में यह है कि अभी तक तो ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया नहीं गया है, लेकिन जाहिर है कि बनाया जाना चाहिए कि जो इदारे हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भी इदारा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी हो या और भी कोई इस तरह के जो इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाना, उन कामों की अहमियत बताना, उस कामों को बाकी रहे, वो अच्छी तरह से चलते रहें, उसकी कोशिश करना। इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं ज़हनी तौर पर, और मुस्लिम हित रक्षक समिति तो जो है इसके लिए तैयार है कि सिर्फ यही एक इदारा नहीं, और जितने अच्छे इदारे हैं वो अपनी जगह पर कायम रहें। हम कोशिश कर रहे हैं इसकी। तो ये थे सलीम साहब की गौर और फिक्र और बेचैनी दोनों चीज़ें इस इंटरव्यू में नज़र आई कि मुस्लिम संस्थाएं जो है उसमें लगातार भाजपा दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को घुसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में क्या कुछ हो रहा है, उससे अहमदाबाद के मुसलमान अब भी बेखबर है। मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कहेंगे कि जो कमेटी अभी तक सेवा का काम कर रही थी, लोगों के खिदमत का काम कर रही थी, लोगों के मदद का काम कर रही थी, वो अब एक राजनीतिक अखाड़ा बनने की तैयारी में है। कमेटी में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाए जो सेवा करने वाले हों, जिनके अंदर कौम की खिदमत करने का जज्बा हो। लेकिन सवाल यही है कि गुजरात वक्फ बोर्ड का इस पूरे मामले में क्या रवैया रहता है। क्या वक्फ बोर्ड ऐसे लोगों की नियुक्ति करती है जो पार्टी से ऊपर उठकर इस संस्था को आगे बढ़ाने का, इसका जो काम है उसको करने का, इसका विकास जो है उसके करने का काम करेगी, या ऐसे लोगों को बैठाया जाएगा जो इसमें बैठकर अपने एजेंडे को सेट करेंगे? बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब जब ट्रस्टियों की नियुक्ति हो जाएगी तभी मिलने की संभावना जताई जा रही है।